हाँ जी मित्रों, मैं कबलू आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट एंड अनीशा शर्मा के बारे में। भाई इन दोनों लोग के बीच में एक लफड़ा हो गया है भाई। अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो बताता हूँ। तो बेसिकली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है बाय द नेम ऑफ अनीशा मिश्रा, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो को अपलोड किया। बेसिकली वो वीडियो 2 पार्ट्स में था, जिसमें वो सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट को एक्सपोज करते हुए ये कहते हुए नजर आती है कि काफी टाइम पहले जब ये दोनों लोग यार स्कूल में पढ़ा करते थे, यानी कि अनीशा मिश्रा एंड अवंतिका भट्ट, तो उस टाइम पे यार अनीशा मिश्रा को काफी ज्यादा बुली किया गया था अवंतिका के साइड से, जिसकी वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करती है अपनी उस 2 रील्स में। मैं आप लोग को वो रील दिखा देता हूँ, आप लोग को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि अनीशा मिश्रा अपनी लैंग्वेज में क्या कहना चाहती है एंड किस तरीके से वो एक्सपोज करती हुई दिखती है अवंतिका भट्ट को। देखिए आप लोग। Hi everyone, I'm Anisha and I finally want to talk about a few things because you all wanted me to. First of all, what exactly happened? Back in high school, I was bullied, and when I say bullied, I just don't mean 1 or 2 jokes. I mean constant comments about me being skinny, being called different names, being mocked for my hair, for my braces, everything. I still remember one incident that till now makes me stage conscious at times. So I was singing in front of more than 500 people, and out of the whole crowd, I clearly remember their faces looking at me, giggling at me. I was sad, I was heartbroken, I was so nervous that I would just go home and question what is wrong with me. And it just did not stay in school. When something gets you in your head at that age, it follows you everywhere. I became so conscious of my body that I used to wear 2 pajamas underneath, that too in summer. I did that to my tuition, I did that to my early college days. Straightened my hair with iron. That's how low my confidence got. And to anyone saying grow up, it was years ago, no, because at that age your brain is forming basic beliefs about yourself, and yeah, you can try to grow out of it, but it just does not vanish only because you are an adult now. Next question, why am I talking about it now? So I posted a video months ago about this, before I even knew where Avantika was in her life. I said in that video I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did, so I left. But recently I have been seeing this person's face online everywhere, and yes, it triggered me. Because no matter how much time passes, when someone who was genuinely so bad towards you, not just to you, to many, suddenly becomes a public face, your mind directly goes back to the last emotional memory that you have with them. And that is exactly how trigger works. It just reminded me of everything, so I spoke. And more importantly, I will speak when I feel triggered and I feel ready, not when some people randomly approve of it. Yeah, that was all it. And I'm also reading the stories that you guys are sending me. I just want to say, don't take shit from anyone, and you don't owe silence. बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े वायरल वीडियो के बारे में। आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली 19 मिनट्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बेसिकली एक एमएमएस है। काफी सारे लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, नॉट ओनली कि काफी सारे लोग उसकी वीडियोस देखे ही होंगे, बल्कि यार रील्स वगैरह से भी यार लोगों को पता चल जाता है कि ये एमएमएस वायरल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मीमर्स जो है वो उन ऐसे सेंसिटिव चीजों का भी मजाक वगैरह बनाते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो वही जो अभी 19 मिनट का एमएमएस वायरल हुआ था, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है भाई, उस लड़के की मारने पीटने वाली भी वीडियोस वायरल हो रही है, आप लोगों को पता ही होगा। उसी के रिलेटेड भाई पुलिस का हमें एक रिएक्शन देखने को मिला है। बेसिकली क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है उस वीडियो के ऊपर, उन पर्संस के ऊपर, एंड ऑल्सो और लोग जो इन टॉपिक्स के ऊपर में वीडियोस बना रहे हैं उसके ऊपर। तो क्या कहते हुए दिखती है पुलिस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक 19 मिनट की वीडियो वायरल हो रही है आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर के ऊपर। तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, पहले तो वो एक एआई जनरेटेड वीडियो है। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि कोई वीडियो या फोटो एआई जनरेटेड है, तो एक वेबसाइट है siteengine.com, आप उसके ऊपर जाइए, वहाँ आप चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप किसी की ऐसी वीडियो को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आईटी एक्ट सेक्शन 67, 67A और 66 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये रील उन दोस्तों के साथ भेज दीजिए जिनने आपको ये वीडियो शेयर की थी, क्योंकि किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना, किसी की पर्सनल फोटो को ऐसे शेयर करना
आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। तो जब तक आप ये वेरीफाई ना कर ले कि 19 किस सोर्स से आ रही है। क्या आपने बताया था वो वेबसाइट जिसमें चेक कर सकते हैं कोई वीडियो एआई है या फेक? siteengine.com, साइट engine.com, उसके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट कोई भी फोटो AI जनरेटेड है या नहीं है। थैंक यू सर। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं राज और फिटनेस वर्सेस रजत दलाल की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोगों को पता होगा आज से 1 साल पहले ही भाई ये कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि बहुत सीरियस वे में भाई यार शिफ्ट हो गई थी। बेसिकली राज और फिटनेस एंड ऑल्सो रजत दलाल दोनों ही यार आपस में मिलने वाले थे, लड़ाई झगड़े होने वाले थे। इन दोनों के दोस्त वगैरह भी रेडी थे कि भाई एक दूसरे को मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर आप लोग को इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मेरी ये वाली वीडियोस देख लेना, आप लोग को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों लोग के बीच में हुआ क्या था। एंड अगर वो वाली कंट्रोवर्सी आप अच्छे से फॉलो किए हो तो आप लोग को पता होगा उस वाली कंट्रोवर्सी के अंदर रजत दलाल पहले के टाइम पे काफी ज्यादा यार अपर अपने आप को रखते थे, लेकिन लास्ट में जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी तो बहुत सारे लोग का यही कहना था कि रजत दलाल वहां पर राज और फिटनेस एंड ऑल्सो उनके दोस्तों से डर गया। इतना ही नहीं भाई, अभी राज और फिटनेस का तो अभी एक पॉडकास्ट आया है रियल हिट के साथ में, जिसमें बेसिकली उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज को रिवील किया है कि जो रजत दलाल बाद में ठंडा पड़ गया था वो इसीलिए क्योंकि रजत दलाल को भाई हम लोगों ने 2-2 चाटे मारे थे, मतलब जितने लोग गए थे सबने मारे थे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, राज और फिटनेस ये भी बताते हुए दिखते हैं कि जो रजत दलाल है वो स्टेरॉइड के ओवर डोजेस वगैरह करता था, जिसकी वजह से भाई उसकी सांस फूलने लगती थी, तो इसीलिए वो हार मान जाता था लास्ट में जाके। क्या कुछ कहते हुए दिखते हैं राज और फिटनेस में, आप लोगों को दिखाता हूं। रजत वाली कंट्रोवर्सी में ये हुआ था कि अब रजत फरीदाबाद का थोड़ी, अब उसकी जैसे कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही थी तो उसने कि आ जाओ फरीदाबाद, हम चले गए। अब हमारे पास बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जिन पर हथियार भी है कि आज इसे मार ही दो, देखी जाएगी। अब ये मुझे समझाएंगे यार इसे कुछ हो गया तो फंसेगा तो तू ही है। मैंने कहा देखी जाएगी, कोई बात ना, प्रूव तो करना है कि मैंने नहीं करा। ठीक है, थोड़े दिन की जेल सही, पर अब तो कुंडी अटक गई। तो आधे उसमें यूँ कहा हम कर देंगे काम और तू हमें जेल में पैसा पहुंचाता रहियो और वकील कर लियो हमारे लिए। रेडी हो गए? रेडी। तो उधर अब वो अकेला पड़ गया रजत, इधर से हम इतने सारे चले गए, फिर कुछ फरीदाबाद के भी हमारे साथ हो गए, कुछ बल्लमगढ़ के भी हमारे साथ हो गए। वो किसी गाँव में था तो एक भाई हमारा वहाँ चला गया, गाँव देख के कही तो हमारे गाँव में खड़ा है, यहाँ से धमकी क्यों दे रहा है? तो समझ गए, जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ। कोई लड़का आपको धमकी दे रहा है और मैं बैकग्राउंड में देखूँ ये तो गाजिबात है, वही है, हाँ। मेरे पड़ोस में खड़ा होकर हम ही धमकी दे रहा है। तो उनमें से एक भाई हमारा निकल के वहाँ पहुँच गया। अब उसने पकड़ के उसे जब वीडियो कॉल करा तो मैं बड़े जोश में, मैंने कहा 5 मिनट मारूँ। तो इन्होंने सारों ने समझाया कि यार देख ऐसा है, लड़के हम हो गए ज़्यादा और रजत हो गया यहाँ अकेला, उसका गाँव नहीं है ये बेचारे का। सब ने 2-2 हाथ भी मार दिए। फिर ऐसा सुनने में आता था कि वो ड्रग ओवरडोज करता है, स्टीरॉयड ओवरडोज करता है, कि उसकी हार्ट बीट तेज हो गई किसी वजह से, कुछ उसके साथ ट्रेजिडी हुई है, तो किसी माँ का बच्चा ही। तो मैंने कहा छोड़ो, उल्टे चलो घर। मैंने कहा ये इतना ही करना था, बहुत है। हमें अकड़ तोड़ दी थी, अकड़ हमने तोड़ ली। हम घर वापस आए, उसने फिर गाली बकनी चालू कर दी। फिर वो चला गया वहाँ मांडोटी। फिर वो बात बढ़ते जाट राजपूत बन गई। बट भाई वैसे ओवरऑल नेट पे माहौल देख के यही लगता है कि यार ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए हमें भी। अब क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि 10 भाई बैठ के धमकी दे रहे हैं। और बाकी अगर हम राज और फिटनेस के बारे में बात करें एंड ऑल्सो उनकी पास्ट कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें तो उसी वाले पॉडकास्ट के अंदर राज और फिटनेस ने एजाज खान को भी एक्सपोज किया एंड ऑल्सो जब एजाज खान से वो मिलने के लिए गए थे मुंबई के अंदर, वहां पर पूरा सिनेरियो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हुआ था सब कुछ रिवील किया भाई। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, राज और फिटनेस जो है वो एजाज खान की दोगलापंती को भी भाई एक्सपोज करते हैं कि ये बंदा पहले तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बाद में जाके अलग अलग पॉडकास्ट के अंदर गालियां बकता है। क्या कुछ कहा राजवीर ने, देखिए आप लोग। थोड़ी देर में वो झंडे वाला ज्यादा झंडेदारी उंगली कर, पहले मैंने बताऊंगा हाँ, ये उस टाइम बोला था। तू कौन है? मेरा घर चला है, मैं कैसे करूं? तू क्यों आ गया? भाई है, मैं कैसे करूं? तेरा घर चला है तो चुप पकड़ा रहे, कह रहे हैं मुझसे कुछ। फिर मैं जाऊँ साइड में लेगा तो वो बिल बिला रहा, ए मालिक के साथ रहो, मालिक के। अरे मैंने कुछ ना, कह रहे तेरे मालिक से। फिर थोड़ी देर बाद बहस होती रही सजाज खान से। तो फिर वो बोला मैं तू तड़क कर रहा हूँ सजाज से, है तो बड़ा ही हमसे। तो उसका एक चेला बोला कि ए मालिक से आप करके बात कर। मैंने मेरा साफ करके बात ऐसी कही वीडियो में है, देखो ना। अच्छा, साफ करके बात। तो सारे भड़क गए, ए राजवीर। मैंने कहा राजवीर, मैंने मेरा करेगा साफ करके बात तू। थोड़ी देर में वहाँ होटल वाला ने पुलिस थोड़ी देर में पुलिस पे फोन कर दिया, वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने हम दोनों ही बिठा लिए। अच्छा, बिठा के फिर बात करवाई। कह रहे या तो दोनों ही खत्म करो, नहीं जीप में बैठो। फिर मैंने जीप में कौन बैठेगा महाराष्ट्र की में। उसने फिर खत्म करके चल भाई कोई बात ना, ये है वो है, मेरा ये मतलब ना, मेरा ये मतलब, चल कोई बात ना। फिर बोला जाते जाते तेरे से खत्म हो गया, हर्ष बेनीवाल दे दे। अच्छा, हाँ, हर्ष बेनीवाल या पूरब झा। अच्छा, मन की हमसे खत्म इसी शर्त पे है जब सबसे खत्म है। जब फिर तने किसी से कुछ कह दी तो फिर आना पड़ेगा।
बोला चल ठीक है अब तो अपना भाई है, जा किसी दिन बिरयानी पार्टी करते हैं। अगले दिन मैं घर आ गया, मैंने मेरा काम खत्म, फिर फ़ोन करा मुझे, ये किधर है, चला गया शाम को पार्टी करते हैं। मैंने भाई मैं तो आ लिया दिल्ली। अभी फिर से वन रोड से हो तो भैया एल्विश के उसमें गया हुआ एपिसोड एक पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट का एपिसोड रिलीज नहीं करा। अरे एजाज खान का क्या है ये, मैं छेड़ दिया उसने कितनी बार भाई बता के। एक दिन मैंने इसकी वाइफ अरेस्ट हुई तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कोई दिक्कत हो तो बता दियो। एजाज की वाइफ, किसकी वाइफ? अच्छा, एजाज की वाइफ अरेस्ट हो गई बीच में ड्रग्स वैक्स में, तो बोला ठीक है भाई बता दूंगा। 3 दिन बाद में पॉडकास्ट देखा, उसमें मुझे गाली बकरा। फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने यूँ क्या है भाई, अबे मैंने कहा हम तेरी यूँ कह रहे तेरी वाइफ के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता दियो, और तू वैसे भाई भाई कह रहा है और फिर गाली वगैरह, ये छोटे ये पुराना है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं शादाब के बारे में। ये 10 रुपए बिस्कुट का पैकेट वाले बंदे को तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी रिसेंटली इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें उसने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी और उसने इस वीडियो के अंदर भाई एक फीमेल को काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया था एंड ऑल्सो काफी गंदी लैंग्वेजेस का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट किया गया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं भाई, अरेस्ट होने के बाद भी अपने वकीलों के सामने आके इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने वो जो वीडियो अपलोड करी एंड ऑल्सो वो जो फीमेल के बारे में मैंने बोला वो काफी अच्छे वे में बोला। हालांकि अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा दूर दूर तक। एंड भी भाई ये बंदा यहीं तक ही नहीं रुका है, ये जो शादाब है भाई रिसेंटली इसने एक वीडियो अपलोड करी अपने वकीलों के साथ जिसमें भाई वो लोगों को ही धमकी देता हुआ दिख रहा है कि अगर उसके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लगाए तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। भाई क्या कहता हुआ दिखता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर जो कोई भी आने वाले समय में मेरे खिलाफ कुछ और ऐसी साजिश रचेगा तो ये मेरी लीगल टीम है। हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। भविष्य में कोई भी अगर शादाब भाई के विरुद्ध ऐसी सोचेगा कार्रवाई करने की तो पहले उसे हमारी लीगल टीम से सामना करना पड़ेगा। हर तरीके से शादाब भाई के साथ हैं। शादाब भाई का कंटेंट हमेशा से अच्छा रहा है, बेहतरीन रहा है, नेक दिल ये इंसान है और इसी चीज़ का इन्हें कल बेनिफिट भी मिला। माननीय न्यायालय से भी बेनिफिट मिला है, प्रशासन का भी सहयोग मिला है और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा क्योंकि शादाब भाई का कंटेंट हमेशा अच्छा रहता है। और सामाजिक तत्वों को फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। वो अब दोबारा कोई ऐसी शरारत करने की ना सोचे, उसे पहले हमसे टकराना होगा, उसके बाद आगे का काम होगा। थैंक यू। जय हिंद। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी ने अपने एक हेटर का रिप्लाई किया है। भाई बेसिकली हुआ क्या कि बहुत सारे लोग आप लोगों को पता होगा ध्रुव राठी को कहते हैं कि इसकी वीडियोस ज्यादातर लोग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से देखते हैं एंड इंडिया से कोई इसकी वीडियोस नहीं देखता, पाकिस्तानी इसके मोस्टली ऑडियंस है। तो रिसेंटली भाई ध्रुव राठी के ही भाई एक फॉलोअर ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें वो ये कहता हुआ दिखता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम अपने चैनल का स्टैट्स दिखाओ जहां पर ये दिखाता है कि तुम्हारी वीडियोस को कौन से कंट्री से ज्यादा लोग देखते हैं। एंड लिटरली भाई ध्रुव राठी ने उस चीज को शो भी कर दिया जहां पर हमें मोस्टली यही देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो इंडिया से ही ध्रुव राठी के वीडियोस को देखते हैं। एंड ऐसा ही उन्होंने सरकाज़म में एक ट्वीट भी किया, वो कहते हुए दिखते हैं ध्रुव राठी की मेजॉरिटी ऑडियंस तो पाकिस्तानी बांग्लादेशी है ना। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क का भी रिसेंटली हमें एक पॉडकास्ट देखने को मिला ज़ीरोधा ऐप के फाउंडर निखिल के साथ में, जहां पर भाई उन्होंने निखिल के सामने एक बहुत बड़ी चीज को रिवील किया कि उनकी जो पार्टनर है शिवॉन वो लिटरली एक हाफ इंडियन है। एंड उन्होंने ये जो खुलासा किया है भाई अभी इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। वो क्या कहा था उन्होंने, क्या रिवील किया था, दिखाता हूँ। You know, my partner Siobhan, you know, she's half Indian. I don't know if you know that. I didn't know that. Yeah. One of my sons with her is middle name is Sekar after Chandrasekhar. Wow. Yeah. Very interesting. Did she spend any time in India, Siobhan? No, she grew up in Canada. बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। आप लोगों को पता होगा आशीष चंचलानी का जो YouTube मूवी है इकाकी, उसका पार्ट 1 आ चुका है जिसके ऊपर भाई क्रेजी रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी, वो कहते हुए दिखते हैं यू गाइज आर फायर, 15 मिलियन व्यूज, 1.2 मिलियन लाइक्स इन 3 डेज, क्रेजी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं भाई, अगर आप लोगों को पता नहीं तो आशीष चंचलानी अपने इकाकी को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के भी अंदर गए हैं भाई, जहाँ पर यार वो कंटेस्टेंट के साथ में इंटरेक्ट वगैरह भी किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान खान से भी वो मिले, वीकेंड के वार पे गए हुए थे। तो हाँ भाई वो इकाकी का प्रमोशन बिग बॉस के सेट पे भी कर रहे हैं। तो बढ़ता नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं युजवेंद्र चहल के बारे में। अभी रिसेंटली युजवेंद्र चहल कुछ क्रिकेटर्स के साथ में भाई इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे, जहां पर भाई लिटरली उन्होंने धनाश्री वर्मा को ट्रोल कर दिया भाई, वही अपने शादी वाले टॉपिक के रिलेटेड। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। शादियों का सीजन है, खूब सारी अटेंड करके आया हूँ। पाजी करवा देते सोच रहे हैं, पाजी है हम सब में बड़े अब तो। पाजी अच्छा थोड़ी दिख रहा हूँ आपको हंसता खेलता हुआ। नहीं बैंक बैलेंस ज्यादा लग रहा है, कर लो। तो चलो यार गाइस इस वाली वीडियो के लिए मैं बस अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं आपको बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।